आपल्यातलेच एक MIT कॉलेजचे माजी विद्यार्थी वरुण कुमार बरनवाल यांनी UPSC मध्ये 32 रँक घेऊन राईट एक आश्चर्यजनक आणि UPSC मधले MITचे फर्स्ट स्टुडंट म्हणून ते आपल्याला आज भेटायला आलेले आहेत राईट. सो मी रिक्वेस्ट करतो प्रोफेसर धर्मपात्रे सरांना की त्यांनी वरुण कुमार बरनवाल यांचं स्वागत करावं. All my dear students, I am very much delighted to welcome Varun Kumar Baranwal in MIT campus, where he has studied for his BA in ENTC. All the faculties and the department and college is happy with his success. We know him since last 4 years when he has admitted in MIT campus. He got the success with his dedication and devotion, with sincere efforts. MIT Civil Services Training Institute is established to create ethical and moral administrators for the country. The commitment of Varun Kumar Baranwal to achieve the success in UPSC examination is marvelous. We gathered here to know the methodologies that he has adopted during his preparation. Because the students which gathered here, they are the aspirants of UPSC. They definitely want the inspiration and motivation from the successful candidates. But today in this August Hall, both the students and teachers, they are available. I am the technical teacher of Varun Kumar, but for the UPSC, who had taught him some subject of UPSC, that Professor Neeraj Suratwala is also present in this August Hall. There is a lot of inspiration because of Varun, because in first attempt to crack the UPSC exams with 32 rank is a credit worthy. The number of students they are appearing for the examinations, they are making a lot of efforts, but definitely the God is with some of the students that make them success in this UPSC examinations. But the students who are rejected from the interview, they are also competent. Therefore, along with the dedication and devotion, a luck factor is always there in UPSC examinations. The MIT CST is established to create ethical and moral administrators, and I am sure that the personality of Varun is such that he will definitely do the best in his administrative services. He will do the best to uplift the poor of this country. His family background will definitely inspire the students of rural background. And that's why this lecture is important, so that you can understand, if you set a goal, do the hard work, do the
study with some different methodology than others, then we will definitely achieve the success in these examinations. The personality development of the students is a very vital aspect while preparing UPSC examinations. Policy makers and administrators, these are the two pillars of the development of India. This MIT CST is established due to the vision of Professor Rahul Karad, who always thinks about the different ways to serve Mother India. He always said that this MIT CST is established not for the profit-making organization, but with a zeal to create the moral and ethical administrators. With the vision of Rahul Karad and also the ethical and moral and cultural values that are embedded by Honorable Executive President of MIRE, Professor V.D. Karad sir, I am sure that this institute will create the students of moral and ethical values, and the MIT CST will do the best to induct the students into civil services, and they will serve for the Mother India. I request all the students to be aware about the different aspects of study, so that you should motivate and inspire, and you will study hard so that you can get the success in UPSC examinations. But the real thing is that the different approach, what are the different approaches that he has adopted in his study, so that in first attempts he can get such a large success. That is important candidates in these examinations. And therefore, I welcome Varun to MIT campus. When he come here, he met the principals and executive directors and all this, and he has a lot of memories with MIT. I welcome Varun, and I request him to deliver his lecture, his guest lecture. Okay, thank you very much. I am not going to speak a lot in English because I like to deliver my lectures in Hindi. मेरी वो मातृभाषा है, सो एक जो मॉड्यूलेशन आता है तो मुझे वो बहुत पसंद है, सो मैं हिंदी में बात करूँगा. मैं बोईसर नाम के गांव से आया हूँ. पालघर तालुका था, अब डिस्ट्रिक्ट होने वाला है, तो पालघर तालुका में बोईसर नाम का एक गाँव है, मैं वहाँ से आया हूँ. 2006 में मैंने मेरी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट की. 21 मार्च 2006 को मेरी 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई और 24 मार्च को मेरे पापा की डेथ हो गई. तो 3 ही दिन हुए थे. तो और मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो घर पे ऐसी बात चली, मतलब देखो जब वो सीन होता है तब घर पे सब बड़े आते हैं, ठीक है, सबको समझाने लगते हैं कि आगे की चीज़ें कैसे संभालनी है. तो घर वालों ने बोला कि गांव से आए थे, सब उन्होंने बोला कि अभी ऐसा है, तू बड़ा लड़का है ना, तो घर कौन चलाएगा, तो तुझे दुकान संभालनी चाहिए. तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर हो गया. मुझे पता था कोई है नहीं, मेरी मम्मी लिटरेट है ना, दुकान का काम उतना समझती नहीं थी. तो मैं बोला यार ठीक है, अभी हम दुकान ही करेंगे. तो 10th स्टैंडर्ड के मतलब वो जो 13वीं होती है, मतलब 13 दिन का एक शौक का पूरा पीरियड होता है, और 14वें दिन से मैंने दुकान खोलना चालू कर दिया. पूरा दुकान का एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में ले लिया. 1.5-2 महीने तक मैंने दुकान पे जैसे एक नॉर्मली एक रिवाइव करने का एक एफर्ट लेते हैं, मैंने वो शुरू किया. फिर 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी हुआ 10th का रिज़ल्ट आया. 10th का रिज़ल्ट आया, मुझे 89% थे. मैं अपने स्कूल में टॉपर था, मैं अपने गाँव में सेकेंड था. सो लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट, जैसे अभी सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, उस समय भी कर रहे थे. तो उस समय मैं जब सुबह 11 बजे रिज़ल्ट लगा, मैं स्कूल गया, रिज़ल्ट लेके आया, और घर पे मैं एकदम शांत बेड पे आके बैठ गया, है ना. मतलब वो अंदर एक ये था कि यार हमसे लोग इतना मिलने आ रहे हैं, ठीक है, और आगे पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है. तो वो एक बहुत ही एक मुश्किल समय था. मेरी मम्मी आई बाजू में, मम्मी ने शायद, देखो माँ समझ जाती है ना. तो मम्मी आई बाजू में, मम्मी बैठी, मम्मी बोली कि क्या हो गया. तो आवाज़ शब्द तो नहीं निकले, आंसू निकला है, ठीक है. तो मम्मी समझ गई. तो 1-2 दिन गए, एक इमोशनल सीन हुआ घर पे, ठीक है. सब बैठे आजू बाजू में, अब मेरी बहनें बैठी, हम 5 भाई बहन हैं, तो मेरे 4 भाई बहन, मम्मी और 1-2 रिलेटिव्स, ऐसे सब बैठे, और चर्चा ये होने लगी कि आगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है. तो एक कंक्लूजन ऐसा निकला कि मेरी मम्मी ने बोला कि मैं दुकान चलाऊंगी. अब मेरी बड़ी बहन है, एक की शादी हो गई थी, एक की नहीं हुई थी.
तो जिसकी शादी हो गई तो कुछ कर नहीं सकती थी, जिसकी शादी नहीं हुई थी उसने बोला मैं स्कूल में पढ़ाऊँगी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊँगी। और मैं मेरे चाल में एक भैया ट्यूशन्स लेते थे, उन्होंने बोला मैं तेरे को जॉब दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले जो है 11th स्टैंडर्ड में हमारे यहाँ पे तारापुर विद्या मंदिर नाम का एक कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लिया। अब बात यह है ना कि आजकल बिना पैसे के कहीं काम नहीं चलता। सो तारापुर विद्या मंदिर में एडमिशन लेने के लिए मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी, और वो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। 10,000 रुपये तो बहुत दूर की बात है। तो मैं 50 रुपये का फॉर्म मिलता था, फॉर्म तो भर दिया था, मेरिट लिस्ट में मेरा पहली लिस्ट में नाम भी आ गया था, एडमिशन लेने जाना था। 12:30 बजे सेकंड लिस्ट बनाना शुरू कर रहे थे, मतलब जिसने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया उसको एलिमिनेट करके सेकंड लिस्ट बनाना शुरू करने वाले थे। और 12 बजे दुकान पे मैं और मम्मी बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि पैसे नहीं है, ठीक है। और मैं वापस से मूड तो वही था कि मतलब मम्मी ने बोला था मैं पढ़ाऊँगी, मैंने तब तक एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं पढ़ने वाला हूँ। मैंने बोला ठीक है मम्मी जाने दो, 1 साल क्या है, अगले साल से पढ़ाई करेंगे, दिक्कत क्या है। इतने में मेरे पापा का जो ट्रीटमेंट करते थे वो डॉक्टर मेरे दुकान के सामने से जा रहे थे, वो अपने लड़के का एडमिशन करवाने आए थे। तो उन्होंने मुझे देखे, वो मुझे देखे और वहाँ पे उतर गए दुकान के सामने। और देखो भगवान अलग अलग तरीके से काम करता है। दुकान पे उतरे, उन्होंने पूछा क्या हो गया वरुण। मैं बहुत टेंशन में था ना, मतलब ऑब्वियसली टेंशन में था, तो मैंने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की। उन्होंने तुरंत मेरे जेब से 10,000 रुपये निकल के दिए, मुझे जाके वहाँ पे छोड़ा कॉलेज में। मैंने 12:30 बजे के बाद एडमिशन करवाया, सेकेंड लिस्ट बनना शुरू हो गई थी। लेकिन भगवान मिस्टीरियस वे में काम करता है। मैं 11th-12th का मेरा शेड्यूल अगर मैं बताऊँ, मैं सुबह 6 बजे उठता था, मैं 7 बजे कॉलेज जाता था, मैं 1 बजे कॉलेज से आता था, खाना वाना खा के मैं 2 बजे ट्यूशन्स पढ़ाने जाता था, 2 बजे से 9 बजे तक मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। 9 बजे मैं दुकान जाके दुकान का हिसाब किताब करके दुकान बंद करके मैं 10:30 बजे घर पे आता था, मैं खाना वाना खाता था। इसमें 11 साढ़े 11 बज जाते थे। 11:30 बजे के बाद मैं पढ़ने बैठता था। मैं वापस से रात को 1-1:30 बजे तक पढ़ाई करता था और वापस सोता था, सुबह 6 बजे उठता था। मैंने इस तरह मेरे 11th और 12th निकाला है। 11th और 12th में मेरी बहन, जैसे मैंने पहले बताया, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। सो एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज़ था। जब मैंने 11th में 12th में एडमिशन लिया, चलो 10,000 रुपये भर दिया, 600 रुपये महीने की फ़ीस थी, ठीक है। और मैंने पहले दिन डिसीजन लिया कि मैं फ़ीस नहीं भरने वाला हूँ, ठीक है। मैं बोला कि हर सिचुएशन में, आप कितने भी मुश्किल सिचुएशन में होगे, हमेशा 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक प्रकार की चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, जिनको आप कंट्रोल कर पाते हो, और दूसरे प्रकार की चीज़ होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है ना। तो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था कि जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है आप उन चीज़ों को कंट्रोल करो, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाती है। जब 11th में एडमिशन लिया तो मेरे कंट्रोल में खाली पढ़ाई करना था, पैसे कहाँ से आएंगे मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो मैंने बोला मैं पढ़ाई करूँगा। मैंने पहले दिन से, जब दोस्त लोग, एक यूफोरिया होता है ना कि 11th में आ गए, 12th में आ गए, एक मज़े का पीरियड होता है, ठीक है। शायद मैंने वो एंजॉय नहीं किया। मैं पहले दिन से पढ़ाई में लग गया। मैंने पढ़ाई की, क्लास में मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरैक्टिव रहता है टीचर से, क्योंकि मेरा एक ऑब्जेक्टिव था, एक अल्टीरियर मोटिव था, है ना। मैं क्वेश्चंस पूछता था, डाउट्स पूछता था, मैं टीचर्स की नज़र में आना चाहता था। मैं टीचर्स की नज़र में आया, पहली एग्जाम हुई, रिजल्ट आया, मैं टॉपर था। फिर मेरा जो यूजुअल प्रोसीजर रहता है, मैं पहले गया टीचर्स के पास, मैंने पूरा केस एक्सप्लेन किया, प्रिंसिपल के पास गया, पूरा केस एक्सप्लेन किया। मेरे 2 साल की पूरी फीस मेरे टीचर्स ने भरी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी मैंने उन चीज़ों को कंट्रोल किया। मैं 12th के बाद अब ये हो गया कि अभी बोईसर के अंदर कुछ है नहीं, BA करना है, BCom करना है, उसके आगे कुछ है नहीं, और उस समय सिविल सर्विसेज करना है ऐसा मतलब आइडिया भी नहीं था, ठीक है। तो मैं बोला कि यार 12th के बाद क्या करना है, सब दोस्त लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, मैं बोला मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा, ठीक है। होता है ना दोस्त में डिसाइड कर लेते हैं। तो CET का एग्ज़ाम दिया, मुझे 179 आए CET में। अब भाई इतने मार्क्स तो आ गए, अब एडमिशन लेना, पैसे चाहिए। MIT का चलो कुछ भी है, फीस तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो उस समय कुछ, मैं जब पहली बार आ रहा था पुणे, तब 70,000 रुपये कुछ फ़ीस थी, और आओगे रहने का डिपॉजिट चाहिए, मेस के लिए पैसे चाहिए, पूरा खर्चा मिला के कुछ 1,00,000-1.5 लाख रुपए के आसपास उस समय आंकड़ा बैठ रहा था कि 1 लाख रुपए लेके आना है। अब पैसे भैया मेरी मम्मी ने 2 साल में जमा तो किए थे। मेरी मम्मी रोज़ 100 रुपये जमा करती थी, मम्मी के पास 60-8 हज़ार रुपये थे। मेरी बहन जॉब करती थी, उसके पास 10-15 हज़ार रुपये थे। मैं खुद जॉब करता था, उसका थोड़े बहुत पैसे जमा थे, और बाकी जो पैसे थे वो दूसरों ने हेल्प कर दिया। फर्स्ट ईयर का फीस तो भर गया। अब ये पता था कि सेकेंड ईयर का फीस भरने नहीं आएगा, ठीक है। तो अब सेम वही, मैं बोला कि यार सेकेंड ईयर का फीस ही नहीं भरना है हमने, ठीक है। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तैयारी शुरू की। अब यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ बताने वाला, लोग डराते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी शुरू करोगे ना, लोग डराने लगते हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे लोग बोलते थे यार बिना AT-KT के तो इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकती,
है ना, 80 KT तो लगेगी ही, ठीक है। वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम का सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर तो यार कोई पास हो ही नहीं सकता बिना क्लासेस लगाए, ठीक है, बिना क्लासेस लगाए कोई पास नहीं हो सकता। अगर नहीं लगाया क्लासेस तो पहली बार तो पास नहीं होगा, दूसरी बार देगा तो पास हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, पहले अटेम्प्ट में तो बैकलॉग लगता ही है, ठीक है। मैं बोला यार क्लासेस लगाने में पैसे तो है नहीं, और ठीक है यार केटी लगेगी, ठीक है, देख लिया जाएगा, दूसरे बार में निकालेंगे। मैंने फर्स्ट सेम की तैयारी शुरू की। लोग बोलते थे आके, मैं बोलता था यार अपने कंट्रोल में वो चीज़ें है ही नहीं, मेरे को पढ़ाई पे ध्यान देना, मैं पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, बाकी जो होगा चीज़ें देखी जाएंगी।